Okay, auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. We are starting off today's session wherein we are going to study perfect continuous tenses. 3 perfect continuous tenses that we are gonna start today in today's session. But before moving forward, I would like to inform all of you that in the upcoming week, Monday, Tuesday, and Wednesday, taking I will be taking your test. Okay, you have to prepare your oral test that I will ask each and every one of you so that we may properly move towards the practice session. तो जो next upcoming session है आप लोगों ने oral test prepare करना है. And what would be in that oral test? उस oral test में क्या होगा? You have to learn by heart. जो आपके 12 टेंसेज हमने पढ़े हैं, 3 इंडेफिनेट, 3 कंटिन्यूस, 3 परफेक्ट और 3 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस. ये जो 12 टेंस हैं, इन ईच एंड एवरी टेंस यू हैव टू लर्न 3 बेसिक थिंग्स. आपने 3 बेसिक जो है वो हर टेंस में याद करनी है. द फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन. ये उसकी रिकॉग्निशन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए. द सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब. हाँ, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है ये आपको फिंगर टिप्स पर होना चाहिए. एंड द थर्ड वन इज मेन वर्ब, कि उसके अंदर मेन वर्ब कौन सा हम यूज कर रहे हैं. तो दीज 3 थिंग्स यू नीड टू लर्न बाय हार्ट. क्लियर? Sir, repeat. Can you, sir, please repeat it all tenses? I am repeating again. Listen to me carefully. आपका नेक्स्ट वीक में ओरल टेस्ट होगा 12 टेंसेस का. ठीक है, पहली चीज ये आपने माइंड में रखें. अब 12 टेंस कौन कौन से हैं? 3 इंडेफिनेट. इंडेफिनेट के 3 टेंस हैं, फिर कंटिन्यूस के 3 टेंस हैं, फिर परफेक्ट के 3 टेंस हैं, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस के 3 टेंस जो अभी हम पढ़ेंगे लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ये जो 12 आपके टेंस बनेंगे इसमें आपने इनको याद करना है. याद क्या करना है? लर्न बाय हार्ट क्या करना है? आपने 3 चीजों को फोकस करना है. पहली चीज उसकी रिकॉग्निशन क्या है, पहचान क्या है उसकी. सेकंड, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है. और थर्ड, उसमें मेन वर्ब कौन सा यूज हो रहा है. क्लियर? Yes, sir. रिकॉग्निशन, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये 3 चीजों का यू नीड टू गेट टू नो. Then it will become easier for you to make the sentences. Clear? Yes, sir. Is this test gonna happen? I told you that on Monday, Tuesday, and Wednesday, 3 days are dedicated to ask you to let me know about the 3 things of each and every tense. So we will start on Monday. Okay, but sir, I have a question that we choose any day or we have to like come to class on every single day? You have to attend the class at the same time, wherein I will ask each and every one of you to let me know. So it's like one student on one day and the other student on the other day? No, for example, we can complete in one day. If there are some students, okay, who won't be able to make it happen on that day, they will go for the next day. So we'll try to complete in one day. If it is not completed in one day, then we will try to complete in 2 days so that we may not waste our time as well. After that, we will be starting off the practice of each and every session. Now we are moving forward towards our today's topic, that is perfect continuous tense. ये देखें पीछे लिखा हुआ है perfect continuous tense. आज हम इसको पढ़ेंगे. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हमारा मेन वर्ब है ये आपने याद रखना है. इसकी कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. विच फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. Aksa, are you writing? Yes, sir. First form of verb plus ing. Yes, please. I am still. For example, go. Going. Going. Going.
play, P-L-A-Y-I-N-G, playing. Help, H-E-L-P-I-N-G, helping. to आपने यहाँ पे नोट करना है कि कंटिन्यूस के जो भी टेंस होगा उसमें फोर्थ फॉर्म यूज होगी, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस है चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। लिख ले अपने पास, कंटिन्यूस के तमाम टेंसेस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी। राइट डाउन। कंटिन्यूस के तमाम टेंसेस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है या इस्तेमाल होगी। क्लियर है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ वी कैन सी दैट प्रेजेंट, इसमें भी देखें, रहा है, रही है, कंटिन्यूस के जितने भी होंगे टेंस उसमें रहा है प्रेजेंट में आएगा, रहा था पास्ट में आएगा, रहा होगा फ्यूचर में आएगा। प्रेजेंट में आएगा रहा है, लिखें प्रेजेंट में रिकॉग्निशन क्या होगी? रहा है। राइट डाउन ज़ैनब, प्लीज राइट डाउन। प्रेजेंट में रिकॉग्निशन क्या होगी? रहा है, वो खेल रहा है, जैसे में रहा है। पास्ट में क्या होगी? रहा था। फ्यूचर में होगी रहा होगा। रहा होगा। हैव यू रिटन? नो सर। राइट डाउन, कोई मसला। प्रेजेंट में होगी रहा है, पास्ट में होगी रहा था, फ्यूचर में होगी रहा होगा। राइट इट डाउन। हैव यू रिटन? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब लिखें। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन, हैव बीन। क्या होगा जी? प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा जी? हैज बीन, हैव बीन। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन। फ्यूचर में होगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। राइट डाउन। ये लिख लिए? ये हेल्पिंग वर्ब लिख लिए तीनों के? Yes. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, मैं रिवाइज करता हूं। जो कंटिन्यूस का कोई भी टेंस होगा उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, एक हमने ये चीज लर्न की है आज। सेकंड, हमने लर्न की है हेल्प में रिकॉग्निशन। रहा है प्रेजेंट में आएगा, पास में रहा था आएगा, फ्यूचर में रहा होगा आएगा। तीसरी चीज हमने लर्न की है हेल्पिंग वर्ब्स। हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट में आएगा, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। तो वी हैव लर्न दीज थ्री थिंग्स। एक रिकॉग्निशन हमने अंडरस्टैंड किया है, हेल्पिंग वर्ब अंडरस्टैंड किया है, एंड वी हैव गॉट टू नो अबाउट
the main verb is fourth form of verb. Acha, now write down a question, difference between continuous and perfect continuous. Write down. Difference between continuous and perfect continuous. Difference between continuous and perfect continuous. Write down. Have you written? कि कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फर्क आएगा, क्या फर्क होगा? लिख लिया? Yes, sir. नोट Yes, लिखें, sir. नोट लिखें जल्दी से लिखें। जब कंटिन्यूस टेंस में, जब कंटिन्यूस टेंस में, जब कंटिन्यूस टेंस में वक्त का इजाफा कर दिया जाए, टाइम ऐड कर दिया जाए, जब कंटिन्यूस टेंस में टाइम को ऐड कर दिया जाए, जब कंटिन्यूस टेंस में टाइम को ऐड कर दिया जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। जब कंटिन्यूस टेंस में टाइम को ऐड कर दिया जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। लिख लिए जी? जैसे हम कहते हैं लिखें वो लिखें वो क्रिकेट खेल रहा है, लिखें वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। इसके आगे लिखें, इसके आगे लिखें सिंपल कंटिन्यूस, ये सिंपल कंटिन्यूस है। वो क्रिकेट खेल रहा है, ये कौन सा है? सिंपल कंटिन्यूस। लिख लिया जी? हैव यू रिटन? वो क्रिकेट खेल रही है, सिंपल कंटिन्यूस। आगे लिखें वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। इसके आगे लिखें परफेक्ट कंटिन्यूस। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, इसमें ये क्या बन गया? परफेक्ट कंटिन्यूस। क्यों? देखें, वी हैव एडेड टाइम, 2 घंटे से। जब हम टाइम ऐड कर देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। गुलाम साहब, इज इट क्लियर टू यू? जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। जब सिंपल कंटिन्यूस जो है उसमें यस सर, टाइम को ऐड कर देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। क्लियर? यस सर। ये भी आप लोगों ने याद करना है। सर मेरी बात आ रही आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। अगला लिखें जी डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। Difference between since and for.
Difference between since and for. For का लिखें जी, for के लिए होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। for के लिए क्या होगा जी? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सर रिपीट करिए जी। जी सामने देखे बच्चे, लिखा हुआ भी है, सर मैं साथ लिख भी रहा हूं। for किसके लिए आएगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सर लिखवा रहा हूं। लेकिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं खामोश था, बटे में लिख रहा था आप लोगों के लिए ना। ओके ओके। ये देखें जी बच्चे, अभी जो मैं कह रहा हूं ये लिख लें अपने पास, फिर आपको मैं बाद में समझाता हूं। जो फॉर है उसके लिए होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर के लिए क्या होगा जी? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और सिंस के लिए होगा स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम। ओके लिख लिया है? जी ये देखें जी, I have written each and everything over here for your better understanding. For होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसके लिए सेंटेंस लेके, शी हैज बीन रीडिंग फॉर 4 hours। ड्यूरेशन 4 hours। एंड सिंस होगा स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम। शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। Have you written? All of you have done? Rayan? नो सर ये सेंटेंसेस लिखना। लिख लें, राइट डाउन। अक्सा आपने लिख लिया बच्चे? Yes, sir. Malik Amna, have you written?
जी रयान लिख लिया है? यस सर। ओके, अभी आपने इसमें 3 चीजें याद रखनी है। कितनी पॉइंट याद रखने हैं? 3। पहला आपने याद रखना है कि जो परफेक्ट टेंस हैं इनमें पहचान क्या होती है, इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और इनका मेन वर्ब क्या होता है। ये पहली चीज याद करनी है। क्या बताया मैंने अक्सा? परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। नहीं, उसकी पहचान भी याद करनी है, हेल्पिंग वर्ब भी याद रखना है और मेन वर्ब भी याद रखना है। याद करना है आप लोगों ने। ये पहला पॉइंट है। क्लियर? क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि डिफरेंस क्या है सिंपल कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में। डिफरेंस क्या है ये याद करना है आपने। ओके सर। और थर्ड आपने क्या याद रखना है? सिंस और फॉर। डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, ये याद करना है आपने। Sir, class is over. यस, अबाउट टू फिनिश। वेट ओनली 2-3 सर कैन यू मिनट। एलोबरेट फॉर और सिंस? मैंने भी ये भी नेक्स्ट करूंगा, फिलहाल आप इसको याद कर लें। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस ओके में मैं सर। आपको डिटेल के साथ एक एक चीज करवाऊंगा। क्लियर? ओके सर क्लियर। I will ask you to first of all learn all the rules by heart. Then it will become easier for you to manage to write down each and everything by yourself. Rayan, are you done with all these यस things? सर। Ghulam Hussain यस Sahab, सर। are you done with all these things? Lab. Okay, now we are about to adjourn our class, finish our class. Inshallah, see you on coming Monday. Get ready Yes. with your oral test as well. Till then, Subah bye bye. Thank you. Allah Hafiz. खुदा इधर कुल हो सब सुबह खुदा वाली क्लास चला लेता है